السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی خان، اور جیسا کہ میں کہا کرتا تھا، یہ صوفی جلال الدین، نور حسن، طاہر رضا، مفتی اختر نظامی اور دو چار لوگ، سب ملا کے 6-7 ہی لوگ ان میں پورے کے پورے سب ہیں جو گمراہیت پھیلا رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ حسمتی رودھولوی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں۔ حالانکہ یہ بریلوی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مبلغین ہیں اور جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے اس سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے، جبکہ اس کے تعلق سے جب میں نے بات کیا عبد المصطفیٰ حسمتی رودھولوی سے، ابھی آپ آگے آڈیو سنیں گے، وہ صاف کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں تعلق ہے؟ کہ وہ عوام کو صوفی جلال الدین اور مفتی اختر نظامی، نور حسن، طاہر رضا، یہ سب جو ہے یہ عوام کو بھی حق دے رہے ہیں کہ عوام اگر وہ تیسری کلاس بھی یا دوسری کلاس بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے، تعمیر ادب جو بچے پڑھتے ہیں پرائمری میں، معلوم ہے جو 4 سال کا بچہ پڑھتا ہے، اتنا بھی اگر وہ نہیں پڑھا ہوا ہے، پھر بھی اگر اس کو اتنا علم ہو گیا، یعنی وہ تحقیق کر سکتا ہے قرآن اور حدیث سے، تحقیق کر کے جس کو چاہتا ہے کافر کہہ سکتا ہے۔ اور یہ بریلی شریف کے ایک مفتی صاحب نے بھی کہا ہے یہ بات کہ اگر اس کے پاس ہے تو آپ اس سے دلیل طلب کریں۔ حالانکہ یہ اگر وہ شخص حکم لگا رہا ہے تو آپ اس سے دلیل طلب کریں۔ دیکھیے، شریعت میں پہلے تو اس کو حق ہی نہیں ہے، تو جب اس کو حق ہی نہیں ہے تو جس کے پاس حق نہیں ہے میں اس سے دلیل طلب کر کے کیا کروں گا؟ تو ہم نے یہ بات بھی ہم نے مفتیان کرام اور علماء کے پاس میں ہم نے رکھا اس کو، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے کہ پہلی بات تو اس کو حق ہی نہیں ہے تو اس سے دلیل طلب کیوں کرنے جائیں گے بھائی؟ اس سے دلیل ہی طلب نہیں کرنا ہے، وہ اپنا تحقیق کرتا رہے، وہ کوئی حجت نہیں ہے، اور وہ یہ چیز جو ہے وہ گمراہیت ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ہمارے مفتیان کرام کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی مفتی اختر نظامی اور جو ہے صوفی جلال الدین، یہ لوگ بالکل جاہل ہیں۔ میں ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں آج مہینہ بھر سے، لیکن ان کی اوقات نہیں ہو رہی ہے کہ جتنا بھی الزام ہم پر لگائے ہیں اور جتنی بھی باتیں یہ لوگ ہمارے خلاف بولے ہیں اس کو ایک بھی صحیح ثابت کر دیں۔ میں 50,000 روپے کا انعام بھی دوں گا، مگر یہ ان کے ہڈیوں میں پانی بھرا ہوا ہے اور یہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ یاد رہے، عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے یار کہ دیکھیے، حق وہی ہے کہ جو دہاڑتا ہے، بھاگنے والا حق نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ یہ چیز جب وہابی دیوبندی کی آتی ہے تو آپ یہ بات بولتے ہیں کہ حق ہی جو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، تو آج ان کے سامنے میں ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں، مگر یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، بریلی شریف سے یہ حکم آ گیا، یہاں سے وہ حکم آ گیا، جھوٹی بات پھیلا رہے ہیں۔ اپنے ہی آدمی کو عالم بنا کر انہی سے بچنے کے لیے ایسا آڈیو گڑھ لیتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد میں ارے واقعی میں اگر ہمت ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرا آڈیو بھی اپنے چینل پہ ڈالو جو میرے خلاف تم بناتے ہو، اور میں تمہارا آڈیو اپنے چینل پہ ڈالوں گا جو تم میرے خلاف بناتے ہو۔ عوام کے پاس میں برابر بات پہنچنا چاہیے۔ جیسے گالیاں تم بھی دیتے ہو، گالیاں ہم نے بھی دی ہے، تو میری گالیاں تو تم نے رائج کر دی، لیکن تمہاری گالیاں وہ چھپایا کیوں؟ تم نے بتا دیتے جو پوری بات تھی، نہیں بتاؤ گے کیونکہ تمہارا چندے کا سوال ہے، تمہارا نام کا سوال ہے، نام کمانا تمہیں ہے۔ تو ایسا ہے کہ آپ لوگ آڈیو سنیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ عبد المصطفیٰ حسمتی رودھولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے جو ہیں منہج پر قائم نہیں ہیں، یہ لوگ گمراہیت پھیلا رہے ہیں، اور اس پر میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ جتنے بھی لوگوں کا ہم نے نام لیا، نور حسن، مفتی اختر نظامی، صوفی جلال الدین، یہ 3 جن ان میں سے، طاہر رضا وہ تو مکار ہے، وہ صرف بڑبڑاتا ہے، نور حسن بھی وہی کام کرتا ہے۔ اب اگر علمی بات اطمینان سے اگر کوئی ثابت کر دے تو 50,000 روپے انعام بھی دوں گا۔ یہ علی خان ڈنکے کی چوٹ پر جس طرح سے آج وہابیوں سے 8 سال تک ڈنکے کی چوٹ پر بولتا رہا، اسی طرح تمہارے سامنے بھی اب بول رہا ہے۔ اگر اوقات ہے تو بات کرو، اور جب بھی بات کرنا ہو، کسی مفتی سے ہمارے خلاف فتویٰ لینا ہو تو مجھے پھر بھی لائن پر لو، کیونکہ تم وہاں جھوٹ بول کر کس بیانی کر کے فتویٰ لے لیتے ہو اور وہی عوام میں پھیلاتے ہو۔ مجھ کو تم لوگوں نے بلینک لسٹ میں ڈال رکھا ہے، نہیں تو ہم اگر اپنے عالم سے جب بات کرتے ہیں تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم تمہیں بھی لائن پر لینے کے لیے تیار ہیں،
क्योंकि तुम भी वहाँ अपनी बात रख सको, मैं भी अपनी बात रख सकूँ, मगर ये तुमसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की बात होनी चाहिए। तो ऑडियो को सुने और इन लोगों से बचें। ये गुमराह लोग हैं और ये गुमराहियत फैला रहे हैं। हमारा मरकज़ बरेली शरीफ है, किसी के लिए किसी आम आदमी को ये हक ही नहीं है। अभी आप आगे सुनेंगे कि वो किसी को बाइकाट करवाए। मैं ये कह रहा हूँ इनसे बचो, क्योंकि हमारे मुफ्तियान कराम कह रहे हैं बचो। आप आगे ऑडियो सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। हाँ हाँ, अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब बात कर रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहा है? और ये 10 मिनट बात करना था आपसे। बताइए। यही कि आप लोग जो है वो फतवा किस हिसाब से देते हैं कि क्या? जब आदमी की जब इस्लाह की ज़रूरत होती है तो इस्लाह नहीं करते हैं, इंतज़ार करते हैं कभी ये गलत करे तब उसको हम फतवा दें, ये दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। मसलन जिसके साथ में आप उठते बैठते हैं या जो आदमी आपके साथ में उठता बैठता है उसको कोई नहीं जानता है, वो तामीर अदब तीसरी क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है, अब्दुल हमीद, और मुझे लाखों लोग जानते हैं। वो मुझको फतवा देकर सारे ग्रुपों में और ऑडियो को काट छाट कर मुझको काफिर साबित कर रहा है, वो कुरान और हदीस से। आप कौन बोल रहा? मैं अली खान ही बात कर रहा हूँ। क्या आप लोगों पर ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी तरफ अपने आप को लोग मंसूब करते हैं तो आप उनके लिए कुछ कहें? वो मंसूब कोई करता है नहीं करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। हाँ, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो वही मैंने उनको सख्ती से मना कर दिया था कि इस किस्म की बातें करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आपको जो बात करना वो उलमा से बात करना। तो उलमा फैसला करे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। ये सूफी जलालुद्दीन और ये 4-6 जन है, उसमें कोई नहीं बिना एराब का अरबी पढ़ना नहीं आता है किसी को। और हजरत साहब को एक मरतबा मुलाकात हुई, उनको जानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ और नहीं जानते हैं कि क्या उन्होंने कब से बात शुरू की है, क्या बात शुरू की है, किस मौजू पर हमारी गुफ्तगू हुई है, उनकी गुफ्तगू हुई है। सुन लीजिए, हमको क्यों ले आए, सुन लीजिए, हमारे कोई पहचान नहीं, कोई मुलाकात नहीं है, तो हमको बीच में सुन लीजिए। हेलो, जैसे आप उसको लाइन पर ले लें या हम उसको लाइन पर ले लें, जैसे दोनों जो फरीक हैं वो फिर आप फैसला कर दें, फिर हम मान लेते हैं। अब वो अकेला जाके कुछ और बात किसी से कह लेता है, फतवा ले लेता है और वो फिर सबको सुनाता है काट छाट कर। उनको हमने आपसे कोई बात की है तो फिर उसको हमको शादी करना, खुदी की बातें करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं बात कर रही हूँ, आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, तो आपको दीजिए और आपको जो बात करना वो कीजिए। लाइन बजा। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। ये हमारे अली भाई हैं, उनके पास चलिए आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलिए ना जी हजरत, जैसे कि बिजी हैं आप, क्या कुछ रहेगा वक्त आपके पास 2-5 मिनट? बहुत बिजी हूँ, लेकिन आप बोलिए। हाँ, तो एक शख्स है जो तामीर अदब नहीं पढ़ा हुआ, तीसरी का तामीर अदब पढ़ा, हमारे गांव के बगल का है। हाँ, वो फतवे देता है। आपको गैर अली को फतवा देना है ना, सख्त हराम है। हाँ तो हाँ, और एक मुफ्ती साहब कह रहे नहीं दे सकता है, बरेली शरीफ के हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल नहीं दे सकता है, गैर अली को मसला बताना हराम है। हाँ, लेकिन अब वो नहीं मान रहे। तो दूर की बात है। हाँ, और एक आलिम साहब हैं, मुफ्ती हैं, तो वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि एक शख्स है जो अपने आप को वहाबी कहता है, गुस्से में कह दिया उसने, क्या हुक्म लगेगा? तो बोल रहे किसी भी तरह से अपने आप को वहाबी कहे वही हुक्म लगेगा जो वहाबी पर लगता है। अभी कैसा रहता है ना, अगर वो चीज वो नहीं है और उसको है ना जानबूझ के वो है ना इस्लाम और है ना ऐसे शख्स जो ना सख्त सजा का मुस्तहिक है और उसकी जो हिमायत है वो सजा का मुस्तहिक है। हाँ, अब देखिए ये चीज है। अब दूसरी बात क्या है, मैं हूँ तो मुझसे बहस चालू हुई कुछ लोगों की
तो वो बार बार मुझे वहाबी बोल रहे, वहाबियों के गोद में बैठा हुआ है, ऐसा वैसा है। तो मैंने कहा कि तुम मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं वहाबियों की तरह मतलब बनकर उनके टॉपिक पर मैं तुझसे मुनाजरा कर लेता हूँ। तो क्या मैं वहाबी हो गया? नहीं, वहाबी पहली बात, वहाबियों का जो बदअकीदगी है ना, हाँ वो बदअकीदगी अगर कोई इस तरीके का अकीदा रखता है तो वो आदमी, अगर जो उस तरीके का अकीदा नहीं का है, नहीं तो उसके अकीदे वालों को हम खुद काफिर समझते हैं, और उनके अकीदे पर जो कायम है और अपने अकाबिर का जो दिफा कर रहा है, मैं उनके कुफ्र पर कोई शक करे उसको भी मैं काफिर समझता हूँ। हाँ। ठीक है ना। लेकिन मैंने उससे बात करने के लिए कि वो राह फरार इख्तियार कर रहा था और अपने आप वो फतवे दे रहा था, तो मैं बोला तू मुझ पर फतवे लगा रहा है, तुझको इतना इल्म नहीं है, और वो मैं साबित कर दूंगा। आपको बताओ, गैर आलिम को शर्की मसाइल के ऊपर की गुफ्तगू करना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन उनको किसी आलिम ने दीन से कांटेक्ट करके शरीयत के कानून के हिसाब से जी करना चाहिए काम। जी जो करना है वो आलिम का दीन करेगा, समझ रहे हैं? हाँ। गैर आलिम को कोई चीज इस तरीके से करना नहीं चाहिए, ये शरीयत के ऊपर जता रहता है और बहुत सख्त। हाँ, तो अभी मैं 8 साल से रद्द वहाबिया कर रहा था, तो ये गहरे ही आलिम सब लोग हैं और वो लोग फतवा दे देकर मशहूर कर दिए मेरे बारे में कि अहले सुन्नत के फला ऐसा। एक आलिम भी नहीं सही तरह से है जिसका नाम सूफी जलालुद्दीन है, वो बिना एराब का अरबी नहीं पढ़ पाता वो शख्स, और हाँ बिना एराब का अरबी नहीं पढ़ पाता है। मैंने खुद उसके पास भेजा, मैंने कहा इसका पढ़कर बता दे मुझे, और मैं थोड़ा मुझसे बात करना है, मैं अरबी जान जाऊँ इसमें, क्योंकि मैं भी बिना एराब का नहीं पढ़ पाता हूँ। अब वो शख्स उस आदमी का जो तीसरी क्लास तामीर अदब नहीं पढ़ा हुआ है, उसके सारी बातों को वो काट छाट कर पेश किया, झूठ बोला, कुरान से मसले अखद करके मुझको काफिर कहा, और उसकी तहकीक पर वो मुझे भी काफिर कह रहा है। जो किसी मोमिन को काफिर कहे, रकान की हदीस है कि अगर वो नहीं है तो उसके तरफ पलट आती है। जी। लिहाजा किसी को काफिर कहने से पहले वो अपने बारे में सोचे कि उनके लिए क्या हुक्म है। हाँ, अब ये लोग मुझको अहले सुन्नत से खारिज कर दिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे लोगों से कतई ताल्लुक रखिए। जी है ना, बिल्कुल ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। जो लोग है ना खुद मसाइल से नावाकिफ और दूसरों को मसाइल और फतवे से बाहर करते हैं। हाँ, तो उसमें ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। जी, और वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। हम हालांकि हम खुद कह रहे हैं कि ये मसलके आला हज़रत से हटकर ये तालीम है जो तुम सबको दे रहे हो। ये मोतबर उलमा, मोतबर मुफ्तियाने कराम, मोतबर इदारे का काम है ये जो तुम कर रहे हो। नहीं करना चाहिए तुम्हें ये सब। नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है। चलिए मैं जरा दीजिए। ठीक, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई, हाँ, मैं एक मुफ्ती साहब के पास अभी और लगाता हूँ, वो भी यही बताएंगे, क्योंकि जो जिस मौके पर ये लोग कायम है, मैंने पूरा नेट तलाश कर लिया हूँ, समझ गए। कहीं पर भी वो चीज इनके मौकिफ का कोई आलिम बता ही नहीं रहा है नेट पर कि इनका मौकिफ जो है वो आला हजरत का मौकिफ है जिस पर ये लोग कायम है। हाँ ठीक है, चलो रखो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलिए अली भाई। जी, सैयद आबिद अली साहब बात कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, आप तो आलिम ही है ना? जी। अच्छा, एक मुफ्ती शमसाद साहब हैं। हाँ जी। उन्होंने उनसे एक सवाल किया, अब्दुल हमीद ने, कि कोई शख्स अपने आप को वहाबी कहता हो तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? तो वो बता रहे हैं वही हुक्म लगेगा जो वहाबियों पर लगता है। बिल्कुल, वो इनडायरेक्टली वो ही हो जाएगा ना, फिर वो मतलब गुस्ताख। हाँ, अब सुनिए इस्लाम। हाँ, अब दूसरी बात, फिर उसने कहा कि वो गुस्से में उसने कहा है, तो बोलते हैं कि किसी भी तरह से अगर वो कहे तो भी उस पर वही हुक्म लगेगा, यानी किसी भी तरह से अपने आप को वहाबी कहे। तो ये मुझे जानना है कि ये किस किताब में लिखा है या हमारे किस आलिम ने बताया कि किसी भी हिसाब से कोई अपने आप को वहाबी कहे तो भी वो वही हुक्म लगेगा काफिर का? नहीं यार, देखिए, अगर कोई गुस्से की हालत में कहता है तो इस्लाम कहता है कि रुखसती है, और उसको उस वक्त तक का वक्त दिया जाए जब तक के वो बिल्कुल पूरी अक्ल और शऊर के साथ बात ना करे। अब हमने कल पूरा नेट पर, हेलो, मैं सही मुस्लिम का हवाला दे रहा हूँ जी, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह 110 के अंदर
प्यारे सागिर हाजिर ने, और वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझसे जिना हो गया। और जिना भी इंसान के ईमान से खारिज कर देता है। तो आका अलैहिस्सलाम कहने लगे साहबा से कि साहबा इनको चेक करो, कहीं ये शराब की हालत में तो नहीं। तो साहबा ने चेक किया, कहा कि या रसूल अल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं इनमें नजर नहीं आ रही, मतलब ये शराब की हालत में तो नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं दोबारा आपसे फिर वही पूछूंगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने कुछ वक्त देने के बाद उनसे पूछे कि आप कहो क्या कहना चाहते थे। कहा कि या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो चुका है और मेरी सजा क्या है। क्या होना है ना। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम्हें रजम कर दिया जाएगा, और उन्हें रजम कर दिया गया। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसकी तौबा जो थी वो सच्ची थी, अगर ये तौबा में मेरी उम्मत को तकसीम कर दूं तो खुदा की कसम आधी उम्मत में हिसाब जन्नत दाखिल हो जाएंगी। हाँ, अब सुनिए। हेलो जी बोलिए। तो उन्होंने जो ये मुतलकन बता दिया कि किसी भी तरह से कहे, ठीक है ना, उस पर वही हुक्म लगेगा जो वहाबियों पर है। अब मैं कल पूरा नेट दिन भर तलाश किया, मैं कम से कम 200, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। अब उनका फतवा लेकर वो अब्दुल हामिद मुझे कह रहा है तुम वहाबी हो, और जबकि हमारा जो बात है, सुन लीजिए, हमारा जो बात हुआ नूर हसन से हुआ। अच्छा, नूर हसन से ये बात हुआ है कि वो उसकी जमात जो है ये रुधौलवी मसलक से जो जुड़े हुए हैं, वो हमको बोलते हैं अरे तुम्हारा ऑडियो वहाबियों के नेट पर जाता है, तुम वहाबी के गोद में बैठ गए, वहाबी हो गए। ग्रुपों में तमाम लोग बोल रहे थे। अच्छा, तो मैं उसको बोला इस पर तुम मुझसे मुनाजरा कर ले, यानी मैं वहाबी नहीं हूँ, ग्रुप में बोल रहा हूँ मैं, इस पर तुम मुझसे मुनाजरा कर ले। सही। तो मैं मुनाजरा करने के लिए उसको फोन लगाया, तो मैं बोला चल इस पर मुनाजरा कर ले। तो बोलता है मैं आपस में क्या मुनाजरा करूँ। मैं बोला चल फिर मैं वहाबी बनकर मुनाजरा कर लेता हूँ, यानी उसके उनके टॉपिक पर मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, समझ गए। जैसे होता नहीं है कि कोई हमारे भी, अभी देखिए हमारे इदारे में ऐसा हुआ है कि एक लड़का वहाबी बन गया है, अहले हदीस, एक लड़का सुन्नी, आपस में मुनाजरे करते हैं। तो हमारा मकसद इस तरह से है, समझ रहे हैं। अब वो मुफ्ती साहब बता रहे हैं किसी भी तरह से वो अपने आप को अगर कहता है तो वो वही हुक्म यानी काफिर हो गया। तो अब मैं उनके पास फोन लगा रहा हूँ तो साहब फोन ही नहीं उठा रहे हैं, मैंने बता दिया तब। नहीं वो गलत है। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी आलिम में इतने जन से, अभी कल एक मुफ्ती साहब से और भी बात हुआ, वो भी यही बात बता रहे हैं कि वो गलत फैसला है। यहाँ पे बिल्कुल गलत है यार, जो शरीयत बताती है वो सही। हाँ। अब कोई कुछ भी अगर बोले तो ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई वहाबी अब बताइए, सुनिए, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक क्या है, वहाबी अपने आप को कहता हो, वहाबी के घर में पैदा हुआ हो, मुतलकन नहीं किया, मुतलक तौर पर हर वहाबी नहीं काफिर है। बिल्कुल, जो कुफरिया अकायद उनका जानता हो और उनके उलमा की कुफरिया अकायद जानता हो और उसको तस्दीक करता हो, उसकी दिफा करता हो, वो काफिर है। हाँ, और गुमराह और काफिर में फर्क है। काफिर कुछ और है और गुमराह कुछ और है। हाँ, तो अब वो कह रहे नहीं वही वहाबी का फतवा लगेगा डायरेक्ट। बताइए, ऐसे ऐसे मुफ्ती पड़े हैं यार। तो जब मैं उन पर एतराज करता हूँ तो बोलते हैं तेरी जमात में मुफ्ती है कौन, तू सबसे लड़ने ही लगता है। गलत को अगर गलत बोले तो उसमें बुराई क्या है। अब बताइए। हाँ, अभी देखिए वो, अरे भाई मैं दलील दे रहा हूँ ना कि आला हजरत के मसलक में ये कहीं पर लिखा हो तो मुझे दिखा दो कि मुतलक तौर पर कोई किसी भी तरह से अपने आप को अभी कहे वही हुक्म लगेगा काफिरों पर। बिल्कुल, आप किसी का फ्यूचर सेट ही नहीं कर सकते, आप किसी को जिंदगी भर के लिए नहीं बोल सकते। हाँ, क्या पता तो कल पलट जाए। आपका काम कोशिश करना है, और यही हमारे इमाम ने किया है। हाँ, कि आधे आधे रात को जाकर थानवी के ये सब जितने भी थे, अच्छा इनके दरवाजे ठोकते रहे, एक बात और बताता हूँ, बुलाते रहे। अच्छा एक बात और बताता हूँ जी। ये सूफी जलालुद्दीन ने हमारे ताल्लुक से 3 या 4 मुफ्तियाने कराम से उसने फतवा लिया है। अच्छा, अब बताइए, चारों मुफ्तियाने कराम ने गलत तरीके से फतवा दिया है। बताइए, अल्लाह, चारों मुफ्तियाने कराम जो बता रहे हैं उसमें चारों गलत है। अच्छा, पहली बात वो क्या है कि जब मुफ्ती साहब से ये बात पेश कर रहा है हमारे ताल्लुक से, तो उनको पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे में और उसमें इख्तिलाफ है, दोनों जब सामने होंगे तब हम हुक्म सुनाएंगे, या तो हम उसमें अगर मगर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, कि यानी अगर आप ऐसा कह रहे हैं वाकई में ऐसा है तो उस पर ये हुक्म लगेगा, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं लगेगा। यानी उसमें पहली बात देखिए, पहली बात तो ऐसा हमारे यहाँ पर या समझो कहीं भी किसी भी शरीयत के अंदर, चाहे किसी भी इदारा हो, कोई भी हो,
कोई किसी की भी इदारे के अंदर किसी भी अकाबिर ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि तुम किसी की भी बात को सुन लो और उस पर हुक्म जारी कर दो। हाँ, तहकीक कौन करेगा? अगर ऐसे ही हुक्म लगाना अगर होता हमारे मसलक में तो इस्माइल देरवी को आला हज़रत कब तक काफिर बोल देते। हमारे एक मुफ्ती साहब के पास में लगाया एक इदारे में मैंने, हमको नंबर मिला, मैंने लगाया। अच्छा, मैंने जब ये ताल्लुक से बात रखा, तुरंत बोलते हैं हमारे इदारे से ऐसा फतवा दिया ही नहीं जाता है, आप सामने आए, उसको लेकर आए, उसके बाद में बात रखें, फिर उसके बाद में हम फैसला देंगे। ऐसा नहीं, फोन पर तो हम देते ही नहीं है, कतई बोल रहे, फोन पर हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है फतवा। बिल्कुल सही है। और वो बताइए 4 या 3 गालिबन हैं, वो तीनों जन यार, बताइए मैं क्या कहूँ यार, वो अगर मगर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो वो बोलते जा रहा है वो फटाफट फैसले सुनाते जा रहे हैं। सही है, उसमें अगर इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई एक गुंजाइश हो, हैं? अपना जो फर्ज है वो पूरी तरह निभाओ यार, वरना क्या है, हम शख्सियत परस्ती में उतर जाएंगे। तो वही ना, आप देखिए क्या चल रहा है। अब वो लोग हमको इस्लाम से खारिज कर रहे हैं, हालांकि वो खुद ही भटके हुए हैं। कोई किसी का इस्लाम भी छीन सकता है, इस्लाम से खारिज करने के लिए बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। अब बताइए, ये 3री क्लास तामीर अदब भी नहीं पढ़ा हुआ, हमारे पड़ोस का है, वो कुरान और हदीस से हमको दायरे इस्लाम से खारिज कर रहा है, और अब्दुल मुस्तफा हसमती उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैंने ये बात तक उन तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उसके साथ में उठते बैठते हैं, रोटी खाते हैं ना, शख्सियत परस्ती। और वही सूफी जलालुद्दीन झूठ बोलता है हमारे ताल्लुक से अली खान एक बात सुनता है 10 बात बढ़ाता है। मैंने उसको 50,000 का इनाम रखा है कि एक भी बात तू गलत साबित कर दे जिसमें मैंने बढ़ाया हो, 50,000 इनाम भी दूंगा। तो भाग रहा है। अरे झूठ बोलता ही नहीं हूँ मैं ना यार, झूठ कहाँ बोलूंगा, जो है वही बोलूंगा, इसीलिए तो तुम भाग रहे हो मुझसे। मसलके आला हजरत से ये लोग खुद हटे हुए हैं, ये खुद फैसले सुना रहे हैं, फतवे दे रहे हैं कुरान से। बताइए, और हमको एक बात और सुन लीजिए 2 मिनट। बरेली शरीफ में कोई सैयद साहब है, उनके पास ये लोग पहुंचे 8 तारीख को। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई फला फला मुफ्ती साहब से बात कर लो। मैंने कहा बात कराओ। तो मैंने कहा हजरत एक शख्स है जो तामीर अदब भी 3री क्लास का नहीं पढ़ा हुआ है, कुरान से मुझे काफिर साबित कर रहा है, हदीस से मुझे काफिर साबित कर रहा है। बोलता है आप उनसे दलील मांगे। बताइए, जाहिलों से दलील मांगना कहाँ तक दुरुस्त है? ये हक है? नहीं। अरे यार, मसला पूछने के लिए हर आलिम से हम मसला नहीं पूछ सकते, वो जाहिल से मैं दलील मांगू? बिल्कुल, ये तो मना कर देना चाहिए पहले ही कि भाई उसको हक ही नहीं है, आप दलील कहाँ बाद में मांगने जाएंगे, उसको हक ही नहीं है ये पहले कि वो साबित ये करे। तो ऐसे आलिम से मुझे बहस करने के लिए बुलाया गया था, तो मैं नहीं गया। तो अब गलती हमारी है, नहीं गया क्या? बताइए क्या है? अब मुझको बोल रहे हैं ये तुम भाग रहे हो। अब इससे मतलब ये निकालिए तुम बरेली शरीफ नहीं आए। अभी हमसे सवाल कर रहा है कि तुम्हें बरेली शरीफ में कोई आलिम तुम्हारे लिए मोतबर नहीं है, इस पर पहले दलील दो। बताइए, सवाल खुद गढ़ लिया, सुनने वाले को लगे कि ये अली खान बोल चुका है कि बरेली शरीफ में कोई मोतबर नहीं है। अच्छा, सवाल खुद गढ़ लिया ऐसा। तो मैंने उससे पूछा, ये मैंने कहा। हाँ, मैंने भी सुना था 1-2 मरतबा उसने कुछ ऐसा तहरीर वगैरह किया था कि बोले तू भाग रहा, बरेली आ रहा नहीं है। वो मतलब खुद ही सवाल ऐसा कर लेते हैं कि सुनने वाले को सवाल लगे कि अरे यार, ये तो लगता है पूरा बाइकाट कर दिया इसने। ठीक है ना, इंशाल्लाह मैं देखिए हाँ आऊंगा शाम में ग्रुप में, देखते हैं, आज खुल के बात कर लेते हैं। ये खुलकर बात कर लें, इसको मैं ऑडियो संभाल कर रखता हूँ, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं दूंगा। जी हाँ ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं कौन क्या साबित करता है। हाँ ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।